when you talk about the post-operative arrhythmia, you have to know everything about with simple arrhythmias, what are the mechanisms and how you need to differentiate all of those. Okay, so what should be the outcome? The outcome should be at least we can diagnose and manage some of the common post-operative arrhythmias. And basically objectives are first to understand the etiology and mechanism of common post-operative arrhythmias, and it's always not good to directly jump onto the diagnosis. Before that, we should understand why this patient, this specific patient, has any kind of arrhythmia and what should be the mechanism of it. Different tools to diagnose post-operative arrhythmias because at times there are certain conditions because of which it's very difficult to diagnose those arrhythmias. Like usually we do the 12 lead ECG to get the sense what the electrical activity is going on. But in post-operative patients, there's a lot of edema because of sternotomy. So I will start the presentation with the incidence, why it is important, why we are talking here about the post-operative arrhythmia, because they are pretty common and it's very not unusual to see those arrhythmias. And when we are talking about arrhythmias, we are talking about everything like tachyarrhythmias, bradyarrhythmias. There could be conditions when you are looking at PACs, PVCs. So incidence is variable from 15 to 48% after the surgery. So there are certain risk factors that has been defined. There are differences in many papers in which there are some factors which cause significant arrhythmias and some cause some benign. So usually lower age and age, the smaller the child, there will be more chances of having more arrhythmias, and similarly prolonged cardiopulmonary bypass time, cross-clamp time, deep hypothermia and circulatory arrest. And if we think logically, or so anything that cause deprive of the heart for longer period of time or extensive surgery prone the patients for the more of those arrhythmias. So and why they are important? Because at least the morbidity is increased in our setup where is no ECMO support or highly specialized ICU. In our setup, even the mortality is pretty high, and it's same all over the world. It's not much different. So why they cause any hemodynamic, and why they are significant? Because they cause the hemodynamic problems, and especially when the patients came from the OR. The patient is already sick on a lot of medications, inotropes, and all those prone those patients to the arrhythmia. Plus, so the main reason are either the rate is too high or too low to maintain the cardiac output, or there is a loss of AV synthesis. So both of those conditions cause the hemodynamic compromise, and then there start a viscous circle in which one thing is aggravating the other. Like if there is much of tachyarrhythmia, the cardiac output become more low and it causes more hemodynamically compromise, and then the more prone to the arrhythmias. So at that point we have to intervene and look at it. So what are the etiologies? So first is the anatomical and surgical factors, right? So what are the anatomical factors? Similarly, last week we see that a patient that is came with the bradycardia, and even you did not look at the ECG, you ask what was the procedure, and the surgeon tell that I was working at the mitral valve and replace it or repair it and do a lot of work there, surgical work there. Then immediately you start thinking that maybe there could be some problem with the AV node. As compared, the surgeon is repairing the sinus venosus ASD or total veins, where he is in the near proximity of the sinus node. There is more chances that the patient come with some sinus node problem, right? So without knowing the surgical details, the basic
anatomy of the patient. Similarly, we see a lot of heterotaxy syndromes in which there is a problem of the sinus and AV node, and so these are the factors where you start thinking, okay, what should be the problem. And on top of it, there are a lot of electrolyte and metabolic imbalances when patient came to the operation like ICU. And again, it's not very uncommon to mistakenly giving some medications like potassium is a main culprit in many ICUs where someone give mistakenly a large dose of those medications, or patient himself came with severe hypokalemia. So you also need to think about this. And then the medications. So in last 1 year, we were looking at the QT intervals in post-operative patients because it was a general consideration that most of the times it looks pretty generous when the patients came immediately after surgery. And there is not much literature available for those acquired long QTs or congenital after the post-operative surgeries. And interestingly, we found that pretty handsome, we does not completed the data and analyze it, but significant number of patients has pretty prolonged QT intervals, especially after first 1 to 2 days of the surgery. So that is the time when you need to be careful about the drugs that prolong the QT, especially if there are some arrhythmia going on, especially the tachyarrhythmia, some PFib, or even you did not appreciate what was that. So it's also important to look at those medications that either we are giving it unnecessarily or it's only indicated. It should not be like everyone should get the ondansetron after surgery because of the risk of vomiting. So think about it. So in the clinical center, in the practical world, there are only two conditions when we talk about the arrhythmia. Either it's stable or unstable. And this dictates the urgency of the therapy. Most of the times, we tend to be very aggressive in the very stable patient. And I think this is not justified because especially in the post-operative patients, we does not have that much luxury of having many IV medications when the patient could not take the oral medications, and the only option we have is the amiodarone. We are starting those medications because on the monitor there are like frequent irregularity, maybe PSCs or PVCs. Patient is sitting stable, but it does not look good to me, so why not I give some amiodarone through this patient? And this is a general behavior. So I think we should look at the patient first, see if it's really causing some significant. There could be conditions in which you start treating prophylactically, like there could be a patient who is throwing a lot of PSCs, and you are like if let's suppose you are repaired a mitral valve in a rheumatic patient who has a huge left atrium, and you are suspicious that this patient will go into the AFib ultimately. So in that case, maybe on your clinical judgment, you start medications prophylactically, but usually in post-operative patients, we are pretty conservative and try to see if it's really causing any problem. Like if patients came with the accelerated junctional rhythm with a rate of 120, 130, and he's stable, either he does not have AV synchrony, but if the patient is stable, then there is no need to act really. Many of times listening something and start doing it, like I know here Dr. Babar talk a lot about AI pacing or overdrive pacing to get the AV synchrony, but at the same time knowing how to operate those pacemaker is important, because if you did not operate it properly, you can induce some arrhythmia that is pacemaker induced. Like pacemaker is not sensing properly, it can induce the atrial fibrillation itself. So using the tool is also correctly is also important. So there are mechanism of those arrhythmias. So generally arrhythmias, when we talk about arrhythmias, there are two different mechanisms. One is the automaticity and the other is re-entry.
Uh, if we talk about the most common arrhythmia post-operatively, especially in those patients VSD stops, it's always a junctional ectopic tachycardia, right? And junctional ectopic tachycardia is an automatic type of tachycardia. What is the automaticity? To generate the impulse on its own. When you start thinking about automaticity or try to understand it, think about the SA node. What's the normal sinus node do with us, right? It start working pretty on the high rates when we start exercise, start running. It goes down when we sleeping. So this is the automaticity that it's change its rate at different times. So most of the junctional ectopic tachycardia is a automatic type of tachycardia. And why it's important? Because the behavior of those tachycardias and the treatment is pretty different. Like if there is a re-entrant tachycardia going on, you can cardiovert anytime. But these automatic tachycardias does not respond to the DC cardioversion, and that is the biggest problem because there is a SVT that is going at 300 beats per minute, and you are trying some medications to get rid of it. And in the back of your mind, you have this knowledge or understanding that at any point, if the patient become unstable, I will shock him and it will go away. But in those automatic tachycardias, this is the problem because at any point if the patient become unstable, there is no one shot remedy available. And all those medications that you use in those tachycardias, they decrease the somehow blood pressures and decrease the cardiac output as well. So most of them are automatic tachycardias, but re-entrant tachycardias are not uncommon as well. I see a lot of patients, especially in our setup, that they actually came with some re-entrant simple SVT. Patient came up with a complaint of palpitations, and the cardiologist take him to the imaging lab. Oh, I found a ASD 10 millimeter. Take him to the OR, get the ASD repair, but the problem was there, and in the immediate post-operative period, he started having those SVT episodes, and at that time, those are mistakenly classified as junctional ectopic tachycardia or some other kind of tachycardia. But there could be a re-entrant tachycardia in that scenario, and the other re-entrant tachycardias that does not involve the AV node include the atrial flutter as well. So if there is a huge atrium in some patient, he can present post-operatively as a atrial flutter as well. Mohsin, ये जो automatic rhythm होते हैं, तो ये DC cardioversion से is there a propensity of making it faster also because आपका adrenaline surge होता है उसके बाद? Yeah. So because and again how you do DC cardioversion. So I see a lot of people did not sedate the patient and just giving the shock. So there is a lot of pain and adrenaline surge. Even you sedate the patient, adrenaline surge तो होता ही. So वो क्या करेगा? Adrenaline surge होगा, आपके sympathetic system stimulate हो जाएगा, and these automatic rhythms become aggravated with that, right? The rate become increased, like it was going at 170 beats per minute. You DC the cardiovert them, and then the rate become 180, 190 because there is a sympathetic surge with that. आप जो बात कर रहे थे ये प्रैक्टिकली हम सब यहाँ पे देख चुके हैं या देखा है और कर भी रहे. So knowing the anatomy and the surgical details is very important. देखें वो नहीं पता ना तो कुछ भी नहीं पता आपको. And other big problem with the surgeons और हमारे दरमियान जो है वो ये है कि there is a lack of communication most of the times. और उसकी वजह थोड़ी सी ये होती है कि हमें इतनी चीज़ें पता भी नहीं होती, right? So जब चीज़ें पता नहीं होती तो हम भी नहीं पूछते, सर्जन भी हमें नहीं बताता, but there should be a very clear relationship between especially the ICU person and the surgeon who should tell everything what happened in the OR, right? The intensivist and the cardiologist should know कि यार अंदर क्या क्या हुआ था, कॉन्ट्री इंजरी हुई थी, आर्मी को जो है कट लग गया था, उसे स्टिच लगाने पड़ गए, whatever, वो उसी के हिसाब से फिर आपकी एरिथमिया मैनेजमेंट भी होती है. So there are certain pretty busy slide और मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसमें कौन कौन से एरिथमियाज होते हैं, वो आपको जो है पता होने चाहिए. जैसे कि अगेन
बाई डायरेक्शन ग्लैन या फॉन्टेन है, उसमें साइनस नोड डिस्फंक्शन होने के मोर चांसेस एज कम्पेयर टू द एवी नोड के सर्जन बीटी शंट करके आए और हार्ट ब्लॉक हो गया। सो अगर इस तरह की स्टोरी मिलती है, आई यूजली से कि यार सेंस नहीं बन रहा, कोई प्री ऑपरेटिव ईसीजी थी, पहले से हार्ट ब्लॉक तो नहीं था, बाद में कैसे हो गया, सर्जन तो बीटी शंट करके आया, वो तो एवी नोड के पास गया ही नहीं। सो डज नॉट मेक सेंस। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको साइनस विनोसिस एएसडी, वो इसलिए याद है मुझे, अभी ऐसा यूटीआर एक मेरे पास बच्चा है जिसकी साइनस नोड थोड़ी सी डिंग हो गई थी, वो वापस से इट्स वर्किंग फाइन नाउ। So whenever you do some work near the VSD AV node, there is a high chances of getting the junctional ectopic tachycardia. And again, I keep saying that junctional ectopic tachycardia and the heart block, the etiology is the same. Some mechanical injury to the AV node, right? If the injury is severe, the AV node stop working at all, you will get a complete heart block. But is there only the खाली थोड़ा सा छेड़ा है, complete injury नहीं हुई है, then the AV node become irritable and start firing at a higher rate, then it become the automatic focus, and then the junctional ectopic tachycardia become more common. एक और चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऑल दोज पेशेंट हु हैव कम विद द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पोस्ट ऑपरेटिवली, जब उनकी एवी नोड रिकवर होना शुरू होती है, so we see a lot of automaticity from the AV node, and at times I start guessing, although I does not have any reference or literature available, but I start saying यार इसका ना जंक्शनल बहुत फायर करना शुरू हो गया है, so probably the AV node start trying to recover, right? And it's kind of a phenomena के वो होता है. Similarly, right atrial isomerism में atrial tachycardia होने के ज़्यादा chances हैं, left atrial isomerism में sinus node dysfunction होने के ज़्यादा chances हैं, hypoplast heart, AVNRTs, so they are like everything आप जो देख रहे हैं, LTGA है, उसमें जो है कंप्लीट एवी ब्लॉक होने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें अनकॉमन होती हैं, अनकॉमन का मतलब ये नहीं होता कभी भी नहीं होती, राइट? सो वी डू लाइक काउंसलिंग फॉर द प्रोसीजर्स, करना भी होता है, पेशेंट को ज़्यादा बता दें तो वो भाग जाता है, ना बताएं तो इट्स अ प्रॉब्लम। सो फॉर आवर प्रोसीजर्स द यूजली रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज 1%, राइट? सो 1% बताने में यही होता है कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, लेकिन अनकॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एक पेशेंट के साथ भी हो जाए तो उसके लिए तो 100% है। सो इसी तरह, सो सिमिलरली अगर किसी को WPW है, सो WPW में प्री एक्साइटेड एफिब हो जाना, इट्स वेरी अनयूजुअल थिंग। हम मरीजों को बताते ज़रूर हैं, स्पेशली इन पीड्स, लेकिन हमारे बैक ऑफ माइंड में खुद यही होता है कि यार पता नहीं कब होता है, हमने तो नहीं देखा, अगर होता भी है तो बड़े लोगों में ज़्यादा होता है। बट वी सॉ इट, राइट? वी सॉ इट इन द आवर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, सो इट वाज अनकॉमन बट इट वाज नॉट जीरो। सो दैट्स व्हाई नोइंग द Not only saw it, that the patient died. yes, That's the other big Yes. thing with it, right? So knowing the arrhythmia and knowing everything pre or post operative is important. If it Before management, the diagnosis is important. Okay. Right. So for we usually teach the junior medical students या जो नए नए residency में आते हैं कि for you everything white complex is VT, right? And this statement is completely incorrect in the post-operative patient, because every you will day and night you will have to deal with the white complex tachycardia, because they are like right bundle branch block और left bundle branch block, अगर वो जो है कोई सेप्टम के ऊपर काम करके आए या लेफ्ट साइडेड काम करके आए, सो टू गेट द टेम्पलेट यू नीड अ 12 पीटीसी कि यार इमीडिएटली क्या था, कैसा क्यूआरएस था, अभी जो क्यूआरएस है मैं उससे कंपेयर करके देखूं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड टू कंपेयर फ्रॉम द बेसलाइन ईसीजी, एंड द प्री ऑप ईसीजी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस बिकॉज द मॉर्फोलॉजी बिकम चेंज आफ्टर इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट। सो ये आईसीयू वाले मुझे बताइए। सो एट टाइम्स आईसीयू वाले कहते हैं कि यार हमारी हीमोडायनेमिक्स जो है वो लुकिंग एट द ए लाइन, लुकिंग एट द सीवीपी के किस तरीके की हो रही है, स्टार्ट सीइंग द कैनन वेव्स, एंड दैट डज टेल यू कि यार ईसीजी पे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतनी कैनन वेव्स हैं, इसका जेवीपी मुझे सही नहीं लग रहा, इज देयर एविडिशन के नहीं, और इज देयर अ सिग्निफिकेंट टीआर प्रेजेंट इन दिस पेशेंट, मुझे तो शायद जल्दी एको करा के दिखाना होगा। So it has its importance as well.
So a regular biphasic atrial pulse counter on the bedside monitor is suggestive of AV synchrony. अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप AV dissociation के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि मोनोफेजिक पल्स काउंटर है, या फिर इरेगुलरिटी आ रही है, सो कैनन वेव्स आ रही हैं, सो दैट विल टेल यू के देयर इज अ लैक ऑफ एवी सिंक्रोनी एज वेल। इसके अलावा जो है ए लीड के बहुत हम बात करते हैं, और ए वायर स्टडी हम करते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर बाबर से आप लोगों ने सुना होगा कि ए वायर करने के दो तरीके होते हैं, यूनी यूनी सरफेस होती है या बाई यूनी यूनी होती है। सो सबसे कोई जूनियर जो आईसीयू में मेडिकल ऑफिसर काम करता होगा, ए वायर स्टडी होती क्या है बेसिकली? इसमें हम पी वेव्स देखते हैं जो हमें नॉर्मल ईसीजी पे इतना सिग्निफिकेंटली नहीं नजर आती, तो वो उसमें हमें ज्यादा नजर आती है ए वायर पे, क्यों नजर आती है क्योंकि ज्यादा? वो डायरेक्टली हम एट्रियल वायर से सो बेसिकली आप जो सरफेस है वहां पे वही अगेन स्टेनोटमी हुई है, एडिमा है बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड यू आर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द पी वेव्स। एंड हमारी ईपी में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्यूआरएस इंपॉर्टेंट है, हमारे ईपी वालों के लिए सबसे ज्यादा पी वेव इंपॉर्टेंट है, राइट? सो जब मैं फेलोशिप पे जा रहा था उससे पहले मैंने टब्बा में एक मंथ की रोटेशन की, सो वहां की जो टैग थी उसने लास्ट डे पूछा, डॉक्टर मोहसिन क्या सीखा? मैंने कहा मैंने ये सीखा कि पी वेव्स ढूंढनी है। जब तक आप पी वेव्स नहीं ढूंढेंगे उस वक्त तक आप रिदम डिक्टेट कर ही नहीं सकते, रिदम को बता ही नहीं सकते, डायग्नोस कर ही नहीं सकते कि व्हाट इज द रिदम। सो टू लुक एट दोस पी वेव्स या एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट टाइम्स व्हाट यू डू, क्योंकि आपके पास टेम्पररी पेसिंग वायर्स लगे हुए होते हैं, so what you do, you either attach a one lead or two leads to those wires, depend कि आप सिंपल एक वायर लगा के आए हैं एटीएम पे या दो वायर लगा के आए। ठीक है। और अगर चाहें तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मार्कर है, डोमियन ट्रायंगल पढ़ा था बचपन में, और बेसिकली लिम लीड्स आप लगाते हैं, 3 लिम लीड्स, 4 होती हैं वैसे तो। सो राइट लेग जो होती है वो आपकी ब्लैक लीड होती है जो कि न्यूट्रल होती है, उसका कोई काम नहीं होता। सो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग जो है मिलकर ये ट्रायंगल बनाती है। सो यूजुअली राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक इज द लीड 1, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक लीड 2 होती है, और यहाँ पे लीड 3 होती है, राइट? सो आप क्या करते हैं, आप या तो ये काम करते हैं कि अगर सर्जन एक वायर लगा के आया है एटीएम पे, सो आइदर लेफ्ट आर्म या राइट आर्म को उस वायर से कनेक्ट कर देते हैं एज अपोज टू द लिम। ठीक है, लिम से कनेक्ट करने के बजाय उस लीड के ऊपर लगा देते हैं। सो व्हाट विल हैपन, ये अब एक एक्टिविटी हमें नजर आएगी जो कि एट्रियम के मसल से लेके लेफ्ट आर्म तक नजर आएगी, राइट? सो इसका एक पोल जो है हमारे एट्रियम के मसल के ऊपर है, दूसरा पोल जो है आर्म के ऊपर है, राइट? सो ये यहाँ पे आपको, दिस विल बी यूनिपोलर बिकॉज एक आपके राइट आर्म पे हार्ट के ऊपर अटैच है, दूसरे लिम्ब के ऊपर अटैच है। सिमिलरली राइट आर्म से लेफ्ट लेग तक जो होगी लीड, इसका भी एक पोल जो है वो मसल्स के ऊपर, एट्रियल मसल्स के ऊपर है, दूसरा लिम्ब के ऊपर है, तो ये भी यूनिपोलर बनाएगी लीड। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग जो है दोनों लिम्ब के ऊपर ही लगे हुए हैं, एट्रियम के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है इसमें, राइट? सो ये क्या बना देगी, सरफेस बना देगी। ठीक है, तो ये यूनी सरफेस हो जाएगी। इसके अपोज अगर आप दो वायर हैं आपके पास और आप राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, सो अब यहाँ पे सरफेस कोई भी नहीं है, स्किन आपने लिम्ब के साथ कोई भी नहीं, एट्रियम से ही जो है एक वायर अटैच है और एट्रियम से ही दोनों है, सो ये बाइपोलर बन जाएगी फिर रियलिटी, ये बाय बन जाएगी। यहाँ पे एक हार्ट से अटैच होगी, दूसरी लिम्ब से होगी, तो ये यूनी बन जाएगी, और ये यहाँ पे भी हार्ट से अटैच होगी और ये लिम्ब से होगी, तो ये भी यूनी बन जाएगी। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट कि आप दोनों वायर्स के साथ कर रहे हैं, सो बाय यूनी होती है, यूनी सरफेस होती है। सो जो यूनिपोलर होती है उसमें एक्टिविटी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि आप एक बड़े एरिया से एट्रियम से निकल के जो है लिम्ब तक आ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्पाइक्स नजर आती हैं। जो बायपोलर होती है उसमें शार्प स्पाइक्स नजर आती हैं, लेकिन बायपोलर में कभी कभार ये होता है कि वो शार्प तो होती हैं लेकिन इतनी छोटी होती हैं कि वो आप सही नहीं पहचान पाते, सो यू नीड टू
सो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली फॉर द डायग्नोसिस बट ट्रीटमेंट एज वेल। डेक्स्ट्रोकार्डिया तो उसमें भी लेफ्ट लोअर लिम्ब में ही होता है क्या? सो मेरे ध्यान में आई ये बात। हाँ, होता तो लेफ्ट लोअर तो सेम ही होगा, ठीक है। उसकी वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा, बट जनरली ए वायर में उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि आप तो एट्रियल एक्टिविटी डीपोलराइजेशन देखना चाह रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द वेक्टर। सही है। सो अगर वेक्टर के लिए देख रहे हैं तो वो एक अलग डिस्कशन है, बट लुकिंग एट द एट्रियल एक्टिविटी उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली एट्रियल पे हाँ, वायर टू डायरेक्टली एट्रियल पे। ठीक है। सो अब इस वेरिएंट टैकीकार्डिया हो जाए किसी को पोस्ट ऑपरेटिव में, लेकिन जीरो नहीं होता, राइट। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सडन ऑनसेट होता है, कोई ऐसा टैकीकार्डिया है कि एकदम से 100 बीट्स पर मिनट पे बच्चा चल रहा होता है एंड सडनली इट गोस 200 बीट्स पर मिनट, और आपने सुनी थी कभी जो है वो मेरी या डॉक्टर बाबर की बात कि यार सडन ऑनसेट रीएंट्रेंट टैकीकार्डियाज होते हैं, तो लेट्स ट्राई द एडिनोसिन। ठीक है, और उसके साथ देखते हैं कि क्या हम एबी को डिसोसिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए एडिनोसिन कैन बी यूज, राइट। बट अगेन, अब वो एडिनोसिन की एहतियातें क्या है, वो आईसीयू में होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एडिनोसिन देते हैं उसके बाद नॉन सस्टेन्ड कोई वेंट्रिकुलर रिदम्स जनरेट होते हैं, नॉन सस्टेन्ड पॉलीमॉर्फिक की वीटी सा की 2-3 बीट्स आती हैं। सो एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल कि आप अगर पेशेंट कोई ऐसा एरिथमिया डेवलप करे तो उसको आप कंट्रोल कर लें। So, approach to arrhythmias in CICU, artifacts, mechanical problems because central line electrolyte imbalance, ये तो आपने हर केस में सोचना ही है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव में नहीं, इवन द पीड्स आईसीयू वाले जो होते हैं, मैनी ऑफ टाइम्स उनको सीवीपी डली हुई होती है नेक से, और वो इतनी ज्यादा नीचे तक लटक रही होती है कि उसकी ऐसे पीएससीज आ रही होती हैं। सो सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स शुड बी थिंक ऑफ. So again, like in this X-ray, there is a line, CVP line that is coming like all the way almost to the IVC, और यहाँ पे ये बीट टू बीट इस एट्रियम को इरिटेट कर रही होगी और कैन थ्रो दिस एनी काइंड ऑफ arrhythmias, PSCs or something. And आप आईसीयू में आए और आपने रात में देखा कि जी बताया गया कि कोई रिथमिया हो रहा था पेशेंट को, एंड दिस वाज द टेलीमेट्री एट दैट टाइम, क्या ख्याल है, व्हाट इट लुक लाइक, कहाँ पे? ये वाला कहाँ, ये यहाँ पे? ओके। सो ये क्या है, ये आर्टिफैक्ट है? सही है। सो यू कैन इजीली गेट फूल्ड के यार इसको कोई वीटी हो रहा था, वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा था, ठीक है। लेकिन आप अगर ये देखें कि इसकी एक साइकिल लेंथ, इस रिदम जो चल रहा है उसकी देखें, सो उस साइकिल लेंथ के हिसाब से आगे बढ़ते जाएं तो इस आर्टिफैक्ट के बीच में भी हमेशा देयर इज अ स्पाइक, राइट। सो बहुत अच्छा इन्होंने आइडेंटिफाई किया। सो यहाँ पर है, इसके आगे नहीं है। सो यू नीड द कैलिपर, ठीक है। उस दिन डॉक्टर नदीम ने मुझे ईसीजीज भेजी, मैं आधे घंटे तक उन ईसीजीज को देखता रहा। उनका फोन आया, मैंने कहा सर मैं कैलिपर मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कैलिपर के बगैर नहीं समझ में आ रही, ठीक है। उसमें इतना सटल साइकिल लेंथ चेंज हो रहा था कि कभी ए आगे आ जाता था, कभी बी पीछे चले जाता था, कभी बी आगे आ जाता था, ए पीछे चले जाता था। एंड देयर वर लाइक, आई वॉज लाइक यार 3 डायग्नोसिस एक पेशेंट को तो ना दूं ना, कि एक दफा जंक्शनल एस्केप रिदम हो गया है, एक जगह जो है वो एट्रियल टेकिकार्डिया हो गया है, कहीं पे फ्लटर का भी शक हो रहा है। So at times your caliper must be there. So Caliper is not a paper with pen and yes, right? yes, ठीक है, कैलिपर इज Caliper कैलिपर, is caliper. यस। सो आप ये देखें कि इस आर्टिफैक्ट्स के बीच में देयर इज ऑलवेज अ स्पाइक। सो जब ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, सो बिल्कुल आपको असरी भी लगेंगे बहुत सारे टाइम पे, लेकिन यू हैव टू सर्च इन इट कि क्या वो वाकई था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट बात? Unstable space. तो पेशेंट कैसा था उस वक्त जब ये हो रहा था? तो पेशेंट स्टेबल घास खा रहा था, तो देन देयर इज मोस्ट लाइकली आर्टिफैक्ट। ओके, सो दिस इज वन मोर ईसीजी जो हमें अभी रिसेंटली थोड़े से पहले मिली थी। ओनली 3 लीड्स हैं, बल्कि 1 2 3 4 4 लीड्स हैं। सो बट इसको आगे चल के बात करते हैं। सो दिस पेशेंट केम विद आई थिंक हाइपर कैलीमिया सिग्निफिकेंट, और
उसकी वजह से ऐसे था। सो ये है बेसिकली एल्गोरिदम, एंड दिस इज नॉट पोस्ट ऑपरेटिव एल्गोरिदम, दिस इज अ नॉर्मल टेकीरिथमिया एल्गोरिदम, कि आप सोचते किस तरीके से हैं टेकीरिथमियास को और एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, राइट। सो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सो कैसे फास्ट है टेकीरिथमिया है, क्यूआरएस कैसे है, ठीक है। सो क्यूआरएस इसमें तो लिखा हुआ है नॉर्मल क्यूआरएस फॉर एज, ये एज के लिए नहीं है, तो नॉर्मल वाले में है। आप पोस्ट ऑपरेटिव में तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया पेशेंट को, राइट। सो उसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पी वेव आइडेंटिफाइड है या जो है वो नहीं है। अगेन ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए नहीं है, और पी वेव आइडेंटिफाइड जो नहीं है वो एडिमा की वजह से नहीं है, वैसे ही नॉर्मल ईसीजी में अगर पी वेव आपको नहीं आइडेंटिफाई हो रही। सो अगर एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड के इरेगुलर रिदम है या रेगुलर रिदम, सही है। सो इरेगुलर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज एफिब या फ्लटर, ठीक है। रेगुलर रिदम में आप सिंपल नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया या एसवीटीज या रीएंट्रेंट टैकिकार्डियास को नहीं सोचते हैं, ठीक है। एवीएनआरटी नहीं हो सकता, एवीआरटी नहीं हो सकता, जिसमें बीट टू बीट वेरिएबिलिटी मिलेगी। कभी कभार ऑटोमेटिक टैकिकार्डियास जो होते हैं उसमें जैसे एट्रियल टैकिकार्डिया है, जैसे जेट है, थोड़ी सी वेरिएबिलिटी मिलती है, बट इट शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी एंड शुड नॉट बी बीट टू बीट वेरिएबिलिटी। अगर बीट टू बीट वेरिएबल हो रहा है, कभी छोटा कभी ज्यादा, मोस्ट लाइकली इट्स एफिब। सो देन जब आपने ये ए वायर कर लिया, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज के ए और वी का रिलेशन आपने मालूम करना है कि ए ज्यादा है या वी ज्यादा है, ठीक है। सो ए वी डिसोसिएशन के 3 डायग्नोसिस हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बात की थी। खाली ये कह देना कि पेशेंट को एवी डिसोसिएशन है काफी नहीं है। 3 डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं किसी को एवी डिसोसिएशन के साथ? हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक चाहिए, और सो जंक्शनल रिदम, राइट। सो एक्सेलरेटेड जंक्शनल क्या नहीं है, जंक्शनल एक्टोपिक टैकिकार्डिया कर ले। जंक्शनल एक्टोपिक टैकिकार्डिया सबसे मुश्किल रिदम है, ठीक है, क्योंकि वो अपने खिलाफ ही बातें करता है। सो देयर कुड बी अ रिलेशन, वन टू वन रिलेशन इन जंक्शनल एक्टोपिक टैकिकार्डिया। जंक्शन फायर कर रहा है, वो हर दफा फायर पे नीचे एक वेंट्रिकल में भी जो है वो इम्पल्स सेंड करता है, और एट्रियम में भी सेंड करता है। सो इन दैट सिनेरियो यू विल सी वन टू वन रिलेशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है, देयर विल बी टाइम्स व्हेन देयर इज अ हार्ट ब्लॉक एंड जंक्शनल एक्टोपिक टैकिकार्डिया, ठीक है। सो साइनस अपना चल रहा है और जंक्शन अपना फायर करे जा रहे हैं, वेंट्रिकल में इम्पल्स भेजे जा रहे हैं। सो इन दैट सिनेरियो यू कैन सी अ एवी डिसोसिएशन इन दैट, और वीटी में भी हो सकती है, राइट। सो क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी देख के तो आपने वीटी को आउट कर दिया। क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल वैसी ही है जब पेशेंट साइनस रिदम में था, अभी भी हमारी क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी वैसी है जैसे साइनस रिदम में। सो वीटी आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, जेड बचा या हार्ट ब्लॉक बचा। ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ए ज्यादा है वी से या वी ज्यादा है ए से, राइट। सो अगर ए ज्यादा है और वी कम है, इसका मतलब है कि कुछ पी वेव्स ऐसी हैं जो वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पा रही और वो ब्लॉक हो जा रही, ठीक है। एज कंपेयर्ड अगर जेट है, सो कुछ वी तो सारे बन रहे हैं क्योंकि जंक्शन फायर हो रहा है, वी बनाए जा रहे हैं, लेकिन सब ए में नहीं जा रही, ठीक है। सो इट कुड बी, सो ए इज मोर और वी इज मोर इज इम्पोर्टेंट, या दोनों बराबर है। सो दोनों बराबर होने से भी जो है वो जेट आउट नहीं होता, स्टिल जेट इज देयर, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो है, सो जेट इधर भी है जहाँ पे ए और वीज बराबर है, और जेट इधर भी है जहाँ पे ए इज वीज ज्यादा है और एज कम है, ठीक है। सो लेट सपोज ये है, और जेड भी एक डायग्नोसिस है, एवीआरटी भी एक डायग्नोसिस है, एवीएनआरटी भी एक डायग्नोसिस है। सो अब कैसे डिफरेंशिएट करें कि जेट है या एवीएनआरटी है। आपने ए वायर कर लिया, ए बी का रिलेशन देख लिया, ए इज इक्वल टू वी, ठीक है। अ, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि बहुत, जहाँ क्यूआरएस बनता है उसी के फौरन बाद पी वेव बन जाती है, शॉर्ट आरपी टैकिकार्डिया है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है यार, ये एवीएनआरटी है और जेट है। सो आप कौन सा टूल यूज करें? एडिनोसिन भी यूज कर सकते हैं आप, इससे ठीक है। फ्रंट मॉनिटर देखिए। या वो देख लें कि आप मॉनिटर पे उसको जाके देख लें, सही है। सो हाँ, या रैपिड। हम्म सो लेकिन अगेन वही बात है सर कि रैपिड एट्रियल पेसिंग करने के लिए आपको ये टूल यूज करना आना नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑन बीट ऑनसेट था या हाँ, ऑन ऑफ ऑन यस, डाउन। ओके।
And then what was the disease that patient Yes, had? exactly. What was the surgery that happened? अगर छोटा बच्चा था, large BSC था, and then intra or complete heart block था, then most likely you're dealing with jet. Yes. So some of those factors. सो मैं एडिनोसिन का कह रहा हूँ जस्ट टू गिव यू द सेंस कि आप रिलेशन को या एवी नोड को ब्लॉक करके कर सकते हैं, क्योंकि मैनी ऑफ टाइम्स पेशेंट इतने स्टेबल नहीं होते, या देयर इज अ रिलेक्टेंस कि यार पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में आप एडिनोसिन देंगे थोड़ी देर के लिए सिस्टली कोई रिदमिया इंड्यूस ना हो जाए। सो इट्स नॉट नेसेसरी, कहने का मकसद ये नहीं कि एडिनोसिन देनी है, कहने का मकसद ये इट कुड बी देयर एंड एट टाइम्स यू नीड इट। ठीक है कि यार आपको समझ ही नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा है कि वैसे ही हर दफा सडन ऑनसेट शुरू हो जाता है, या एक पीएससी आती है या पीवीसी आती है। सो अगेन ये बीच में मेरी एक बात निकल गई कि ये री एंट्रेंट टेकिकार्डियास क्यों पोस्ट ऑपरेटिव में ज्यादा आपको नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं कि इनको री एंट्रेंट टेकिकार्डियास को शुरू इनिशिएट करने के लिए यूजली दे आर रिक्वायर्ड ऑफ पीएससीज और पीवीसीज। ठीक है। और इन पेशेंट्स में जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, इट्स नॉट अनकॉमन कि उन्हें कोई पीएससीज पीवीसीज आ जाए। सो अगेन उसी बच्चे की बात कि उसे ए प्री एक्साइटेड एफएफ क्यों हुआ। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता कॉमन, क्योंकि उसकी पुरानी ईसीजी में उसे कुछ ना कुछ पीएससीज आ रही थी, कुछ थ्रो हो रही थी, सर्जरी में काम हुआ था एट्रियम में, इट्स नॉट अनकॉमन। ठीक है। सो वो फिर रीएंट्रेंट टेकिकार्डियाज भी इनिशिएट कर देते हैं, और अगर इरेगुलर रिदम है तो जेट हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज ऑल सेम। सो Most यस। अगर jet में retrograde 1:1 conduction can we say कि कभी heart block नहीं? नहीं। सो एवी नोड के जो कंडक्शन है द इक्वल हो रही है यानी सो नहीं, atrial rate is equal to यस, सो सर ये कह रहे हैं क्या does retrograde conduction through the AV node tells you that there is no antegrade conduction, वो एंटीग्रोड ब्लॉक। ठीक है, पीछे से ऊपर जा रहे हैं नीचे से, तो ये दोनों अलग अलग करेक्टरिस्टिक। ठीक है। सो विद द नॉर्मल एवी नोड कंडक्शन जब हम ईपी स्टडी करते हैं और उन्हें वी पेस करते हैं, सो मे बी 20-30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें वी ए कंडक्शन नहीं होती, उनका रेट्रोग्रेड बिल्कुल ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन एंटीग्रेड कंडक्शन हो रही होती है। और हमने ऐसा भी देखा है कि एंटीग्रेड ब्लॉक है लेकिन रेट्रोग्रेड कंडक्टर है। राइट। सो दीज आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आज तक हमें समझ में नहीं आई है कि क्यों होती है। बट एवी नोड की एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देयर कुड बी एंटीग्रेड ब्लॉक, देयर कुड बी रेट्रोग्रेड ब्लॉक, देयर कुड बी बोथ ब्लॉक्स। ठीक है। सो अगर स्लो वेंट्रिकुलर रेट है, सो अब क्या करें, पी वेव आइडेंटिफाई नहीं हुई तो फिर अगेन हम नीचे आ गए। अगर आइडेंटिफाइड हो गई कि एट्रियल रेट इज लेस देन वेंट्रिकुलर रेट, सो अगेन क्या है, इडियो वेंट्रिकुलर रिदम हो सकता है, जंक्शनल हो सकता है बंडल ब्रांच के साथ, या नैरो साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। सो अगेन बराबर हैं तो साइनस ब्रेडिकार्डिया। सो इडियो वेंट्रिकुलर रिदम यूजुअली हम उसे कहते हैं जो कि साइनस का रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट है, वेंट्रिकल जो है वो एक वाइड कॉम्प्लेक्स रिदम चल रहा है जो कि 110 बीट्स पे चल रहा है। सो इट्स नॉट टेकिकार्डिया, इट्स अ वेंट्रिकुलर रिदम, लेकिन वीटी की क्लासिफिकेशन में नहीं आता। ओके। सो सो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि पी और ए का रिलेशन जब आपने ए वायर करके देख लिया तो अब उसे एक्सप्लेन आपने कैसे करना है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस जो कि हम आई थिंक वैसे ही सेशन विदाउट पोस्ट ऑपरेटिव करके इन इरिथमियास को, सिंपल नैरो कॉम्प्लेक्स इरिथमियास को कर लेंगे कि हाउ वी शुड डिफरेंशिएट दोस कॉमन इरिथमियास। सो जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। यही जनाब, एक पोस्ट, सारे पोस्ट ऑपरेटिव रिदमियास की ईसीजी हैं। क्वालिटी थोड़ी सी मजे की नहीं है, बट एनी गैसेस, और ज्यादातर डॉक्टर फातिमा की भेजी हैं। रिमेम्बर यू आर डूइंग सम ऑडिट इन, जब मैं फेलोशिप कर रहा था। Yes. सही है। एनीवन, जल्दी जल्दी करते हैं। एनी गैसेस? जेट। सो व्हाई जेट? सो रेट कितना है, हार्ट रेट कितना है? हम्म, कितना है अंदाजन? सो एज तो किसी ने भी नहीं पूछी, एक दिन का बच्चा है, जेट है। 150 टैकीकार्डिया फॉर है। राइट। सो एज भी पूछना इंपॉर्टेंट है ना। सो इट्स अ नॉर्मल रेट फॉर अ 1 डे ओल्ड, बट इट कुड बी अ टैकीकार्डिया फॉर 50 ईयर ओल्ड। सही है। सो नोइंग द एज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वाकई में टैकीकार्डिया है या नहीं है। सो आप कहना चाह रहे थे जंक्शनल है। ठीक है, टैकीकार्डिया है या नहीं है वो एक अलग बात करते हैं, या चलो इसे हम ये कर लेते हैं कि जेट भी है। बड़ा है आदमी, 20 साल का। सो व्हाई इज जंक्शनल इक्टोपिक टैकीकार्डिया?
क्योंकि पी वेव्स नजर नहीं आ रही है ना, इसीलिए बोला। ओके, सही है। सो फिर हमने क्या किया, ए वायर कर लिया इसी पेशेंट का। अब क्या हुआ? सो पहले तो ये बताएं ए वायर है कौन सा? वाई यूनी यूनी है, यूनी यूनी सरफेस है? तो भाई दो स्पाइक्स आ रही है, एक वन में आ रही है, एक थ्री में। ओके, बाई का इससे ताल्लुक नहीं है कि कितनी लीड में आ रही है, ठीक है। बाई का, बाई यूनी यूनी में सरफेस ईसीजी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें कहीं पे सरफेस लीड मिल रही है, इन 6 लीड्स में देखो कहीं पे सरफेस है? लीड 2 के बारे में क्या ख्याल? सरफेस है, उसमें कोई स्पाइक नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा, सॉरी। सो लीड 2 को अगर हम गौर से देखें, सो गेट एंड बॉटल। तो कलर भी जिसके उसको पानी अंदर न चला जाए, तो फिर कीबोर्ड पे आया ना, उन्होंने कीबोर्ड पे आया ना तो अंदर ना चला जाए, होपफुली it'll be safe. इसको बस ये कर दिया पे, इसको हाइड स्क्रीन, फुल स्क्रीन। ओके, बस 2 चीज है। अच्छा, हाँ बस यार This may be the very first one. It was a hard thought on there. I want to question that trauma center so target. ठीक है। सो इस ईसीजी में सरफेस है, यहाँ पे देखें एक लीड 2 है जिसके ऊपर कोई स्पाइक्स नहीं है। सो आई अज्यूम दिस इज अ यूनी यूनी सरफेस, ठीक है। अगर जो बाई यूनी यूनी में कोई सरफेस नहीं होती, और सरफेस का फायदा ये होता है कि आपको अगर लीड 1 देखें तो समझ में नहीं आएगा कि क्यूआरएस कौन से है और एट्रियल स्पाइक कौन सी है, ठीक है। सो आप सरफेस से कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्यूआरएस है सरफेस पे, ये जो पॉइंटर नजर आ रहा है आपको, सो इसी के ऊपर चले जाएं तो ऑन द लीड 1 दिस वन आर क्यूआरएस, और उससे पहले वाले जो हैं वो एट्रियल स्पाइक्स है। So A is there with a long PR interval. So this is not a jet, this is a first degree heavy block. ठीक है, क्योंकि सरफेस पे आपको एट्रियल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि जेट है, लेकिन जब आपने ए वायर करके देखा तो आपका डायग्नोसिस चेंज हो गया, इट्स अ फर्स्ट डिग्री हेवी ब्लॉक। ये इसको आप सरफेस में कह रहे हैं, ये टी वेव हुई फिर कौन सी वाली? लाइक इसके नीचे ए वेव जिसको कह रहे हैं, ये या सो इसके नीचे यहाँ पे तो टी यस वेव नजर आ रही है, या लेकिन बात यह है कि पी वेव नजर आ रही है या नहीं आ रही। पी वेव यहाँ पे नजर इस वजह से नहीं आ रही, एक तो लो एम्पलीट्यूड होगी, ऊपर से टी वेव के अंदर कहीं चली गई है, मर्ज हो गई है। सो इस वजह से आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन जब आपने डायरेक्ट एट्रियल वायर्ड से करके देख लिया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सो देर इज अ 1 to 1 AV रिलेशन विद लॉन्ग PR इंटरवल। सो दिस इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो अगेन ये मैंने ईसीजी दिखाया था, ये मैंने आपको बता दिया कि हाइपरकैलिमिया था। सो यहाँ पे क्या हो रहा है इस ईसीजी में? सो कहीं कहीं पी वेव्स भी नजर आती हैं, हर जगह नजर नहीं आती। अलग अलग जगह नजर आ रही एंड प्लस है एक और क्या चीज है, इरेगुलर रिदम है, राइट। सो इरेगुलर रिदम है, टेकिकार्डिया नहीं है, ब्रेडिकार्डिया है। सो ऑटोमेटिकली जब इरेगुलर रिदम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, राइट, क्योंकि फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री में तो रेगुलर रिदम होता है। तो आपने अगेन करके देखी ईसीजी, सो देयर आर ए स्पाइक्स, ठीक है, नजर आ रही है सबको? ए स्पाइक्स नजर आ रही हैं, नजर आ रही हैं यहाँ पे। सो अगेन ये भी यूनी यूनी सरफेस है, दो हैं और एक सरफेस है। सो एज आर मोर देन वीज, लेकिन V to V भी इरेगुलर है। सो इसका मतलब ये है कि कोई सेकंड डिग्री हेवी ब्लॉक चल रहा है, एज मोर देन वीज है, कंप्लीट नहीं है आई थिंक। इसको फिर हमें कैलिपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगता है ये वाली बीट कंडक्ट हो गई है, इसने वी को पुल कर लिया है, जल्दी आ गई है वी, वरना वी देर से आनी चाहिए थी। और लेफ्ट साइड पे
जी ये ज्यादा हो हो रहा है। सो ए इज मोर देन वी इज ब्लॉक, कौन सी टाइप का है वो आप कर लें। सो अगेन दिस इज वन ईसीजी, पी वेव नजर नहीं आ रही, हम्म आपने ए वायर करके देखा, तो दीज आर क्यू आर एस, हम्म ठीक है, जो ऊपर भी नजर आ रहे हैं क्यू आर एस, लेकिन उसके बाद एक और भी स्पाइक नजर आ रही है, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, क्यू आर एस के बाद पी वेव आ रही है और ब्रेडी कहाँ गया, ब्रेडी कार्डिया। सो इस जंक्शनल एस्केप रिदम, ठीक है, साइनस नोड काम नहीं कर रही तो जंक्शन फायर कर रहा है और रेट्रोगेट भेज रहा है। और फिर इस तरह की ईसीजी भी आपको मिलेगी, अगेन डिफिकल्ट टू द सी पी वेव्स, इरेगुलर रिदम, ठीक है। And we tried to look at it and it was some atrial tachycardia going out at very fast rate, फ्लटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखना मुश्किल है, ऊपर इतना ज्यादा रश है पहली वाली लीड में कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से एज हैं और कौन से वीज हैं। सो आपने नीचे सरफेस पे पहले तो ये फैसला करना है कि वी कौन सा है और ए कैसा करना है। सो आप पेन से लिख लें इसको ऊपर या तो, ठीक है। मेरे पास कोई एक ईसीजी होगी भी जिसपे डॉक्टर बाबर ने लिखा हुआ है, ये रहा। सो दिस ईसीजी, सो ये क्यूआरएस है नीचे, ठीक है, आपने उसको मार्क कर लिया, ये क्यूआरएस था, आपको ऊपर समझ में नहीं आया था, आपने उसे वी मार्क कर दिया, ठीक है। हर जगह आप वी मार्क करते जाएं जहां जाएं, एंड देन द ए को मार्क कर लें कि ए कौन से हैं, ठीक है। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज आर मोर देन वीज आर मोर देन, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, हर के बाद एक आ रहा है। एंड लुक एट दिस चार्ट, वो जो बिजी सा चार्ट था उसमें देख लें कि एज आर इक्वल टू वीज और, सो द बॉटम लाइन इज, अच्छा प्री ऑपरेटिव जेट में करते क्या है, प्रीवियसली वी ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट टैकल द साइनस टेकिकार्डिया, बच्चे को वार्म कर दो, थोड़ा सा कूलिंग कर दो, इलेक्ट्रोलाइट सही कर दो, आइनोट्रोप सही कर दो, उन सबसे भी नहीं हो रहा। सो रेट कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिदम कंट्रोल हो ना हो, रेट कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली व्हाट वी यूज इज द एम्यूड्रोन और प्रोकेनामाइड IV, ठीक है। मुख्तलिफ सेंटर्स मुख्तलिफ चीजें यूज करते थे एज पर द अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंस ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन। अब स्पेशली इन द साउथ एशिया एशिया और इन मुल्कों में आयोब्रिडीन का ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर आता जा रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल ड्रग टू स्टार्ट विथ, ठीक है। और अगर उससे काम नहीं हो रहा, सो आपको एट टाइम्स एमईओ भी साथ में यूज करनी पड़ती है टू रेट कंट्रोल, लेकिन डोजेस कम हो जाती हैं, फिर आपको इतनी हाई डोजेस नहीं देनी पड़ती कम्युलेटिव जब आप काम करते हैं तो। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आप रेट कंट्रोल करें, ए ओवरड्राइव, एट्रियल ओवरड्राइव फेस करा के एवी सिंक्रोनी मेंटेन कर लें। जेट इज अ सेल्फ लिमिटिंग इरिथमिया, जब आप हीमोडायनेमिक सही करेंगे 4-5 दिन गुजरेंगे वो खुद ही से सही हो जाएगा। सो रिदम कंट्रोल इज नॉट द प्रायोरिटी, द प्रायोरिटी इज द रेट कंट्रोल, ठीक है। रेट कंट्रोल जब आप कर लेंगे उसके बाद आप ए पेस कर देंगे, सो एवी सिंक्रोनी भी मिल जाएगी, रिदम खुद ही सही हो जाएगा 4-5 दिन, ठीक है। सो रेट कंट्रोल इज द मेन थीम इन द पोस्ट ऑपरेटिव जेट, ठीक है। और फिर पेस मेकर इम्प्लांटेशन की गाइडलाइन, सो पेस मेकर इम्प्लांटेशन आप कब करते हैं, जब 3rd डिग्री हो या एडवांस 2nd डिग्री हो। सो अगर किसी को वेंकी बैक हो रहा है, सो इट्स नॉट अ इंडिकेशन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेस मेकर। आप देखेंगे जरूर, ऑब्वियसली आपकी ये कंसर्न होगी कि सब बिनाइन टाइप 1 या कोई जो है वो मेलिग्नेंट हो सकता है, उसके अपने टूल्स हैं, होल्डर करा के देख लेंगे, या जब बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है वो करा के देख लेंगे। बट यूजुअली एडवांस 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री इज द इंडिकेशन फॉर पेस मेकर। So summaries range from benign to life-threatening conditions, and for treatment, diagnosis should be the correct. And for diagnosis, you need to do some efforts, जो कि immediate post-operative period से, बल्कि pre-operative period से शुरू हो जाती हैं। pre-op ECG वो देख लें, सर्जरी में जाने से पहले पोस्ट ऑपरेटिव ECG कर लें, जिस वक्त टैकीकार्डिया हो रहा है उस वक्त का ECG जरूर डॉक्यूमेंट कर लें, ए वायर कर सकते हैं तो ए वायर कर लें, डायग्नोसिस खुद ही बना सकते हैं तो बना लें, उसके लिए एफर्ट करें, नहीं भी बना सकते तो हेल्प ले लें, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो हेल्प करने वाले को भी आसानी हो जाएगी। एंड देन थिंक अबाउट द मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट इज सेम फॉर एवरीथिंग।